Hello students, myself Bhupinder Kaur, lecturer biology from Government Model Senior Secondary School, 3B1 Mohali. Dear students, today we are going to start our chapter 7th, that is evolution. Now what is the meaning of the word evolution? Evolution means to unfold. Simple terms में मैं इसका meaning बताती हूँ students. We all know that we human beings are formed from monkey-like ancestors. बट अगर हम आज का मॉडर्न मैन कंपेयर करें विद इट्स एंसेस्टर्स देन वी विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस. आज का जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज मोर सिविलाइज्ड, दैट इज मच मोर इंटेलिजेंट एज कंपेयर टू इट्स एंसेस्टर्स. सो ये जो डिफरेंसेस डेवलप हुए हैं स्टूडेंट्स इन मॉडर्न मैन, ये ऑल ऑफ अ सडनली डेवलप हुए हैं. दिस हैज टेकन मेनी ईयर्स because our ancestors they were present nearly 25 to 30 million years ago. इसका मतलब 25 से लेके 30 मिलियन ईयर्स लगे हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न मैन. तो ये जो चेंज आया है इन वी ह्यूमन बीइंग्स, दिस इज नोन एज व्हाट इवोल्यूशन. सो द चेंज इन स्पीशीज विद टाइम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवोल्यूशन. Dear students, in our today's lecture we are going to discuss about the origin of life. कि ये लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और लाइफ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हुई हैं. और कुछ थ्योरीज को सुन के तुम्हें हंसी भी आएगी बिकॉज इन थ्योरीज में कुछ ऐसी बातें जो है वो कही गई हैं जो आज हमें डाइजेस्ट नहीं होती हैं. बिकॉज हर एक जो थ्योरी होती है दैट इज बेस्ड ऑन सम एजम्पशंस, और ये जो एजम्पशंस होती हैं स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती हैं. तो उस टाइम वो साइंटिस्ट जो ऑब्जर्व कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी हाइपोथेसिस दे रहे थे और उसे चेंज कर रहे थे इनटू थ्योरी. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंटरेस्टिंग थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ. So students, let's start this interesting topic of how the first living organism originated on earth. And in this we are going to study about some of the important theories of origin of life. Now students, a number of philosophers and scientists, they have put forth their views and ideas in the form of theories and hypotheses to explain the exact mode of origin of life. And in this we are going to study about some of the important theories जो कि explain कर रही हैं origin of life. And we are going to study some of the theories like theory of special creation, theory of panspermia, theory of spontaneous generation, theory of biogenesis, and the last and the most accepted theory, theory of chemical evolution of life. So students, let's start all of these theories one by one. The first theory is this theory of special creation. ये theory जो है students ये based है conventional religious literature पे. And this theory was first proposed by Father Sudres. According to this theory, everything including the sun, earth, planets, plants, animals, man, they were created by some supernatural power, that is God. कि ये सारी दुनिया जो है ये God ने create की है. And it is an antithesis of evolution. It is opposite to the evolution as it was explained by most of the scientists. तो theory of special creation जो है वो purely religious है. एंड दिस थ्योरी हैज़ 3 कॉनोटेशंस. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस थ्योरी के? सबसे पहला पॉइंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच. ये एज सच क्रिएट हुए हैं बाय द गॉड. सेकेंड पॉइंट, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स was also the same since the time of creation and will remain the same in future also. कि जिस टाइम गॉड ने दुनिया को क्रिएट किया तो इतने ही ऑर्गेनिजम्स उतने उसने क्रिएट किए थे जो अब तक जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और फ्यूचर में भी नंबर जो है वो ऑर्गेनिज्म का इतना ही रहेगा. तो कोई ऐसी नई चीज़ जो है वो क्रिएट नहीं हो रही है बाय द ऑर्गेनिजम्स देमसेल्फ. ऑल द थिंग्स दे आर क्रिएटेड एज सच बाय द गॉड. And according to this theory, Earth was formed about 4,000 years. Earth is about 4,000 years old. So all of these ideas, they were clearly rejected by the scientific facts, fossil records और Darwin's view of evolution जो था उसने इस theory को purely जो है वो reject किया.
उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेंसपर्मिया. थ्योरी ऑफ स्पेंसपर्मिया जो है दैट वाज प्रपोज्ड बाय रिक्टर. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ ऑन ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ केम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, कि दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ के ऊपर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं. अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स थॉट यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स और पेनस्पर्म्स केम ऑन द अर्थ अलॉन्ग विद मिट्योराइट्स, कि जैसे अर्थ के साथ जब मिट्योराइट्स टकराए तो उस टाइम उन मिट्योराइट्स के साथ कुछ स्पोर्स आ गए, पेनस्पर्म्स आ गए, जिन्होंने यहाँ पे लाइफ को क्या किया, फ्लरिश किया. स्टूडेंट्स इस थ्योरी के भी काफ़ी ऑब्जेक्शंस हुए. कईयों ने ऑब्जेक्ट किया कि वो जो स्पोर्स है उन्होंने इंटर प्लानिटरी जो जर्नी थी उसको कैसे रेजिस्ट किया, क्योंकि बिकॉज इंटर प्लानिटरी जो स्पेस है वहाँ पे देयर इज़ नो एयर, ड्राई है सारा का सारा, वहाँ पे टेम्परेचर जो है दैट इज़ वेरी हाई. तो ऐसी जर्नी को स्पोर्स ने कैसे रेजिस्ट किया, स्पोर्स ऐसी जो है जर्नी में रह ही नहीं सकते. तो ये थ्योरी जो है दिस वाज आल्सो ऑब्जेक्टेड बाय द साइंटिस्ट. नाउ नेक्स्ट थ्योरी आई स्टूडेंट्स, थर्ड थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. जैसे तुमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस पढ़े हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जो रिएक्शंस अपने आप हो रही हैं. जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ए बायोजेनेसिस, ए बायो का मतलब नॉन लिविंग मैटर, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म्ड हुए हैं फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर. दिस वॉज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने ये कहा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुए हैं. So the formation of life from non-living material spontaneously and continuously, this is called abiogenesis. Greek philosophers including Aristotle believed that elements such as air, water, fire, earth, they have some vital forces और एक्टिव प्रिंसिपल जिन्होंने लाइफलेस मैटर को कन्वर्ट किया है इनटू लिविंग थिंग्स, कि ये सारी की सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रॉग्स, फिशेज, स्नेक्स ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम मड, ये मिट्टी से बने हैं. माइस जो है इट वुड बी फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ड्राई व्हीट स्ट्रॉ. उससे जो है हम माइस भी तैयार कर सकते हैं, ड्राई व्हीट स्ट्रॉ से माइस भी तैयार किया जा सकता है. और इसकी तो एक रेसिपी दी थी स्टूडेंट साइंटिस्ट ने, जीन बैप्टिस्ट वेल वॉन हेलमोंट ने. इसने कहा कि एक अपनी डर्टी शर्ट लो, उसमें कुछ ये व्हीट ग्रेन्स डाल दो एंड कीप देम इन कबर्ड फॉर 21 डेज, और कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से माइस ओरिजिनेट हो जाएंगे. तो दिस वॉज रियली एक सरप्राइजिंग थिंग है कि एक डर्टी टी शर्ट और विथ सम व्हीट ग्रेन्स वी आर गेटिंग माइस. सो दिस वॉज द रेसिपी विच वॉज गिवन बाय दिस साइंटिस्ट वॉन हेलमंट. और उस टाइम ये सोचा जाता था ये जो फ्लाइज हैं ये क्रिएट हुई हैं स्पॉन्टेनियसली जब मीट जो है वो रॉट करता है, जब मीट सड़ता है, ठीक है, फ्लैश जब उसकी रॉटिंग हो रही है, तो उस टाइम फ्लाइज जो हैं वो मीट से ओरिजिनेट हो रहे हैं स्पॉन्टेनियसली. सो फ्लाइज दे आर फॉर्म्ड abiogenetically from the non-living matter, that is the meat. So this was the theory of abiogenesis, जो ये कह रही थी कि living organisms जो हैं ये create हो रहे हैं from the non-living matter. Now students, theory of abiogenesis that was criticized by 3 scientists, या हम कह सकते हैं this was disapproved by 3 scientists. और सबसे पहला experimental evidence इसका दिया फ्रांसिस्को रेड्डी ने. तो कई बार नाम आ जाता है, name the scientist who first disapproved or criticized the theory of spontaneous generation. So that was रेड्डी. रेड्डी ने स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट किया ये एक्सप्लेन करने के लिए भी फ्लाइज जो हैं दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम रॉटन मीट बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन. एक्चुअली ये फ्लाइज जो हैं ये मैगॉट से बन रही हैं. मैगॉट्स मीन्स लार्वा से फॉर्म्ड हो रही हैं या एग से फॉर्म्ड हो रही हैं विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर. उसने क्या किया, मीट लिया इन डिफरेंट जार्स, कई जार्स को उसने ओपन रखा और कई जार्स को उसने क्लोज कर दिया. कुछ को तो कंप्लीटली सील्ड कर दिया जैसे हम देख रहे हैं, कुछ को तो कंप्लीटली उसने सील कर दिया, और कुछ को उसने कवर्ड किया विद अ क्लोथ सो दैट एयर जो है वो उसके अंदर आ जा सके. तो उसने देखा कि जिस जार्स को उसने क्लोज्ड रखा वहाँ पे फ्लाइज जो हैं वो फॉर्म्ड नहीं हुई. जहाँ पे जार्स ओपन थे,
खुला रखा था, वहाँ पे फ्लाइज जो हैं वो फॉर्म्ड हुई फ्रॉम द मीट। इसका मतलब फ्लाइज जो हैं दे आर नॉट फॉर्मिंग फ्रॉम द मीट, दे आर एक्चुअली फॉर्म्ड फ्रॉम द एग्स और द मैगॉट्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। तो रेडी ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिसअप्रूव किया, बिकॉज उस टाइम ये माना जाता था कि फ्लाइज जो हैं वो मीट से फॉर्म्ड हो रही हैं। उसने कहा भी अगर फ्लाइज मीट से फॉर्म्ड हो रही हैं तो वो उन जार्स में भी बननी चाहिए थी जिन जार्स को क्लोज रखा गया था, बंद रखा गया विद आइदर a plate or with a cloth. तो this was the first experimental evidence which was given by Reddy. but Reddy की भी काफ़ी objections हुई कि उसने अपना ये जो जार है वो बंद कर दिया है, completely close रख दिया गया है, कोई एयर की इनटेक नहीं है, तो किस तरीके से फ्लाइज जो हैं वो फॉर्म्ड हुई। सो देयर वर मैनी criticism of Reddy also, but he was the first to disapprove the theory of spontaneous generation. उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट नाम आता है लेज़ारो स्प्लेंजानी का। लेज़ारो स्प्लेंजानी ने भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। उसने क्या किया, वेजिटेबल ब्रॉथ लिया, वेजिटेबल ब्रॉथ मीन सूप लिया, ठीक है। सो वेजिटेबल ब्रॉथ को हीट किया और उसे इमीडिएटली सील्ड कर दिया, और एक जो वेजिटेबल ब्रॉथ है उसे उसने ओपन रखा और दूसरे को उसने क्या कर दिया, सील कर दिया। उसने देखा कि जिस वेजिटेबल ब्रॉथ को उसने हीटिंग के बाद इमीडिएटली सील्ड किया, दैट वाज नेवर इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। उसमें माइक्रोब्स ओरिजिनेट नहीं हुए, माइक्रोब्स केवल उसमें ओरिजिनेट हुए जिस विच वाज लेफ्ट ओपन। तो इसका मतलब ये है, लेज़ारो ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि हीटिंग से जितने भी माइक्रोब्स हैं दे आर किल्ड, और वो कभी भी इन्फेक्ट नहीं हो सकते बाय दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो ही वॉज बट ही वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कि उसने फटाफट जो है हीटिंग के बाद जो है वो अपनी फ्लास्क जो है वो सील कर दी है। सो कि इस तरीके से तो एयर की जो है वो इनटेक नहीं हो रही है इनटू दी वेजिटेबल ब्रॉथ, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे ओरिजिनेट होंगे। बट आगे इसके एक्सपेरिमेंट को दोबारा सपोर्ट किया तीसरे साइंटिस्ट ने, लुइस पास्चर ने। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, दे वर परफॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स। रेडी ने जो है एक्सपेरिमेंट अपना जो है 17th सेंचुरी में किया है, स्प्लेंजानी ने 18th सेंचुरी में किया, और लुइस पास्चर ने 19th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया। बट तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया है या डिसअप्रूव किया थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को। सो एंड जो था ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दैट वाज डन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ लुइस पास्चर। बिकॉज स्प्लेंजानी की ऑब्जेक्शंस हुई थी कि उसने फटाफट जो है वो अपनी फ्लास्क जो है वो सील कर दी आफ्टर हीटिंग, तो उस तरीके से कैसे जो है वेजिटेबल ब्रॉथ है इट कुड बी इन्वेडेड बाय द माइक्रोब्स। तो इसीलिए लुइस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया, स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया, अपने इस स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट में उसने वेजिटेबल ब्रॉथ लिया, ठीक है, और उसे हीट किया इन अ फ्लास्क जिसकी जो नेक थी दैट वाज मेड स्वैन शेप्ड, ठीक है, जैसे हम फिगर में देख रहे हैं जो नेक है दैट वाज मेड स्वैन शेप्ड। और उसने देखा कि इवन दिस फ्लास्क जो कि एयर के कांटेक्ट में है, बिकॉज स्प्लेंजानी के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जेक्शन हुई थी कि सीलिंग हुई है, कोई एयर का कांटेक्ट नहीं है, तो उसने देखा कि यहाँ पे भी जिस फ्लास्क को सील नहीं किया गया है और वेजिटेबल ब्रॉथ को हीट किया गया है और देयर इज नो सीलिंग ऑफ द फ्लास्क, दिस फ्लास्क वॉज ऑल्सो नॉट इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। सो जो ब्रॉथ था दैट रिमेन्स फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टिल मैनी डेज, जब तक वो नेक जो थी दैट वॉज स्वैन शेप्ड। जब उस नेक को ब्रेक किया गया, ठीक है, उसके बाद वो जो ब्रॉथ था दैट वाज इन्फेक्टेड बाय द माइक्रोब्स। सो इस तरीके से लुइस पास्चर ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को टोटली जो है वो डिसअप्रूव किया। सो
कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, नेम द 3 साइंटिस्ट हु कंप्लीटली डिसअप्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो स्टूडेंट उसमें तुमने 3 साइंटिस्ट का नाम मेंशन करना है, रेडी, स्प्लेंजानी एंड लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट किया था और अपने इस एक्सपेरिमेंट से उसने टोटली पुट अ फुल स्टॉप टू द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और उसने क्या कहा, उसने बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट दिया। बायोजेनेसिस मीन्स कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड हुए हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, नॉट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। सो द नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, सो लाइफ is formed from the pre-existing life. This is the theory of biogenesis. So this theory says that fishes came only from fishes, rats from rats, insects जो हैं वो insects से आए हैं, and so on. That is life begets life. Francisco Redi was the founder of this theory and it was supported by scientists like Spallanzani and Louis Pasteur. They claim that insects cannot arise from decaying meat if it is kept closed airtight, and this was proved experimentally also. Later, Louis Pasteur disapproved the theory of abiogenesis by his popular experiment. बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, कई बार पूछा भी जाता है स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट किस साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था? लुइस पास्चर ने। एंड बाई हिज एक्सपेरिमेंट ही डेमॉन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। So, theory of biogenesis explains about the continuation of life. ये तो बता रही है कि लाइफ किस तरीके से कंटिन्यूड है ऑन दी अर्थ, बट स्टिल एक क्वेश्चन का जवाब अभी भी नहीं दिया गया था बाय दी साइंटिस्ट कि पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ। अबाउट द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अब तो बेशक जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है, बट जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ ऑन अर्थ वो किस तरीके से फॉर्म्ड हुआ था, दैट वॉज नॉट आंसर्ड बाय दीज 3 साइंटिस्ट। सो उसके बाद स्टूडेंट्स जो लास्ट थ्योरी है विच इज़ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, जो कि ये बताती है, एक्सप्लेन करती है कि पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से ओरिजिनेट हुए, दैट वाज गिवन बाय A.I. ओपेरन इन द ईयर 1923। ओपेरन व्यूज़ को लेटर ऑन पब्लिश किया गया अब उसी की किताब में द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और फिर यही कॉन्सेप्ट जो था वो इंडिपेंडेंटली प्रपोज्ड एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी किया था, JBS हेल्डेन एंड सिडनी फॉक्स, एज द ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय केमिकल इवोल्यूशन। और ओपेरन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में ये मेंशन भी किया है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर सिंस। क्या कहती है स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट ये कहती है कि जो पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, बट अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड हो रहे हैं दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, पहले क्या हुई है? पहली लाइफ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, और अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हो रहे हैं दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो दिस इज मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर सिंस। ये स्टेटमेंट ओपेरन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में मेंशन की है। नाउ स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है विच इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ, that is chemical theory of origin of life. ये कहती है कि life was formed about 3.5 million years ago in a primitive atmosphere from non-living substances through a chemical evolution. chemical reactions हुए हैं, life originate हुई है chemical से through gradual progressive changes over a long period of time. तो ये जो student change आया है chemicals में with time, this is known as chemical evolution. ये थ्योरी सजेस्ट करती है दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनिक, और फिर वो ऑर्गेनिक कोलॉडियल स्टेट में बदल गए और उससे फिर फॉर्म्ड हुई फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। हम इन स्टेप्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ? लाइफ
को ओरिजिनेट होने के लिए अर्थ के ऊपर क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस थी? पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन स्टूडेंट, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर विद लिटिल और नो ऑक्सीजन। कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था, दैट वाज नॉट ऑक्सीडाइजिंग। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग होता तो उसने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो फॉर्म्ड हो रहे थे वन बाय वन उनको ऑक्सीडाइज्ड कर दिया होता। ठीक है, सो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर दैट वाज हैविंग नो ऑक्सीजन, दैट वाज रिड्यूसिंग वन। दूसरी चीज, at that time right chemicals they were present like water, inorganic ions, inorganic molecules, they were present। so उस टाइम रॉ मटेरियल प्रेजेंट था और ये रॉ मटेरियल आपस में कंबाइन होके इसने वन बाय वन डिफरेंट केमिकल्स को और या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फॉर्म्ड किया। तीसरी चीज, एनर्जी सोर्स वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। सोलर रेडिएशंस थी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस हो रहे थे जिन्होंने इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन किया। वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे थे जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की टू द अर्थ ताकि ये रिएक्शंस हो सकें। बिकॉज रिएक्शंस एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना, मॉलिक्यूल्स फॉर्म करना, सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म करना, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। So this energy was provided by solar radiations, electric discharges, volcanic eruptions and heat. और लास्ट पॉइंट, इनफाइनाइट टाइम। 1 बिलियन ईयर का टाइम था बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ एंड द अपीयरेंस ऑफ द लाइफ। क्योंकि लाइफ ओरिजिनेट हुई है 3.5 बिलियन ईयर्स अगो और अर्थ की फॉर्मेशन हुई है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो 1 बिलियन ईयर्स का टाइम था, दिस वॉज अ ह्यूज टाइम फॉर द लाइफ टू ओरिजिनेट। सो दिस वॉज द 4 कंडीशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किस तरीके से देखो एक्सप्लेन करती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहला आता है अर्थ की फॉर्मेशन का। तो अर्थ की फॉर्मेशन जो है वो हुई है थ्रू बिग बैंग थ्योरी, कि अर्थ ओरिजिनेट हुआ है अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इन द यूनिवर्स एज अ part broken off from solar system in the form of gaseous cloud called solar nebula। और उस टाइम अर्थ जो था दैट वाज वेरी हॉट। लेटर ऑन इट वेंट ऑन कूलिंग और उसकी कंडेंसिंग हुई और उस टाइम का जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज प्रीबायोटिक एटमॉस्फेयर। और अभी बताया कि एट दैट टाइम द एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, इट वाज नॉट ऑक्सीडाइजिंग एंड एट दैट टाइम elements like hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, all of these elements they were present in their gaseous state। क्यों स्टूडेंट ये सारे एलिमेंट्स गैशियस स्टेट में प्रेजेंट थे या ये जो एलिमेंट्स थे ये अपनी एटॉमिक स्टेट में प्रेजेंट थे? बिकॉज उस टाइम अर्थ का जो टेम्परेचर था दैट वाज 4000 to 8000 डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर था। और स्टूडेंट अगर किसी भी मॉलिक्यूल को हमने ब्रेक करना है इनटू एटम्स, जैसे हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की ही बात करें, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। और उस टाइम टेम्परेचर जो था दैट वाज 4000 to 8000 डिग्री सेल्सियस। तो इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नेचुरली जितने भी मॉलिक्यूल्स थे दे वर इन देयर एटॉमिक स्टेट। तो हाइड्रोजन वॉज इन देयर एटॉमिक स्टेट, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज all of these elements they were present in their atomic state। और जैसे जैसे अर्थ जो है उसमें कूलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल्स जो थे, ये जो एटॉमिक एलिमेंट्स जो थे विच वर इन देयर एटॉमिक स्टेट, उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए। मॉलिक्यूल से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए। सो स्टूडेंट्स ये जो है रिएक्शंस दिखाए गए हैं कि किस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस हुई और उस तरीके से फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है था दैट केम इनटू बीइंग। तो देखो पहला दिखाया गया है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई था कि जितने भी एलिमेंट्स थे दे वर प्रेजेंट इन देयर एटॉमिक स्टेट। ठीक है, उसके बाद जैसे अर्थ में धीरे धीरे कूलिंग स्टार्ट हुई, उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हुई, तो ये जो एटम्स थे दे कंबाइंड विद वन अनदर एंड दे फॉर्म व्हाट, दे फॉर्म्ड मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन बना, वाटर फॉर्म्ड हो गया, मीथेन फॉर्म्ड हुआ, एमोनिया फॉर्म्ड हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। अब स्टूडेंट अगर हम इन गैसेस को देखें तो हम देखेंगे इसमें कोई फ्री ये जो मॉलिकुलर ऑक्सीजन है दैट इज नॉट प्रेजेंट।
मोस्टली एटमॉस्फेयर कैसा है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसमें एमोनिया है, मीथेन है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। there was no free oxygen or molecular oxygen was present at that time। क्लियर। तो इस तरीके से फ्री एटम्स ने जुड़ के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइंड होके सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड किए। जैसे मिथेन और वाटर ने कंबाइंड किया, उसने शुगर, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल फॉर्म्ड किया। मिथेन, वाटर और एमोनिया ने आपस में कंबाइंड होके अमाइनो एसिड्स फॉर्म किए। मिथेन, वाटर, एमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड ने मिलकर नाइट्रोजनस बेसिस बनाए, जैसे कि प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। सो इस तरीके से सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने आपस में कंबाइंड होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड किए। शुगर ने जुड़ के पॉलीसेकेराइड्स बनाए। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल ने ज्वाइन करके लिपिड्स बना दिए, फैट्स बना दिए। अमाइनो एसिड्स ने ज्वाइन करके प्रोटीन्स बनाए। नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर्स और फॉस्फेट्स ने मिलकर न्यूक्लिक एसिड बना दिया। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स बना दिए, एटीपी बनाया। न्यूक्लियोटाइड्स ने मिलकर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म किए। सो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड हुए। धीरे धीरे क्या हुआ स्टूडेंट, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लो होना शुरू हुआ, और जैसे अर्थ का टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ, तो जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट था वो कन्वर्ट हो गया इनटू ड्रॉपलेट्स, और इस तरीके से रेनिंग हुई, बारिश हुई। और ये रेनिंग जो है वो 1000 साल तक लगातार चलती रही। और बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूस रेनिंग ये रिवर्स एंड ओशंस एंड सीज दे वर फॉर्म्ड। और ये सभी रिएक्शंस जो हैं स्टूडेंट्स, ये जो अपर रिएक्शंस हैं, दिस वर टेकिंग प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। और जब रेनिंग हुई तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं दे केम इनटू दी सी। तो अब जो फाइनल रिएक्शंस हुए दे वर परफॉर्म्ड इन दी सी। सो इस तरीके से जितने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे दे वर ब्रॉट इनटू दी वाटर बॉडीज। अब फर्दर जो रिएक्शन हुआ वो पानी के अंदर हुआ। अब हुआ क्या कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हुए। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के कारण हुआ क्या कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने एग्रीगेट्स बना दिए, इन्होंने ग्रुप्स बना दिए। एंड दिस इज नोन एज व्हाट, क्वासरवेट्स, या इनको हम माइक्रोस्फीयर्स कहते हैं। ठीक है। जैसे क्वासरवेट्स बने तो स्टूडेंट अब उसके ऊपर होल्ड आ गया न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि उसमें रिएक्शंस जो हैं वो होनी शुरू हो गई। और हमें पता है कि ये रिएक्शंस जो हैं वो एंजाइम्स करवाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया माइंड में कि अब ये सबसे पहले एंजाइम्स फॉर्म्ड हुई कि न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड हुआ। बिकॉज हमने कहा कि इस क्वासरवेट्स में रिएक्शंस होनी शुरू हो गई, इसमें बिल्डिंग अप और ब्रेकिंग अप जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म्ड होनी शुरू हो गई। और ये रिएक्शंस जो हैं दीज आर परफॉर्म बाय एंजाइम्स। और एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन किससे बना है? डीएनए से बना है। तो अब ये क्वेश्चन आया कि डीएनए पहले बना कि प्रोटीन्स पहले फॉर्म्ड हुए। तो ये सिचुएशन वो आ गई कि पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। तो इसका भी जवाब दिया गया, कई साइंटिस्ट ने दिया कि कई ऐसे न्यूक्लिक एसिड हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल का भी काम करते हैं और एंजाइम्स का भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनए जो है इट वर्क एज अ जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो एंड एज एन एंजाइम्स ऑल्सो। ये राइबोजाइम का भी काम करता है। तो ये कहा गया कि पहला जेनेटिक मटेरियल क्या था? आरएनए था। तो इस तरीके से जब न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड हुआ, न्यूक्लिक एसिड का होल्ड हुआ ओवर द क्वासरवेट्स, तो उससे पहले लिविंग सिस्टम बने जिसको हम यूबायोन्ट्स कहते हैं। और फिर जब एक लिपिड मेम्ब्रेन बन गई क्वासरवेट्स के चारों तरफ और एंजाइम कंट्रोल्ड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो गया और ये क्वासरवेट्स जो हैं दे स्टार्टेड डिवाइडिंग। ठीक है। तो इस तरीके से जो यूबायोन्ट्स थे दे चेंज्ड इनटू फर्स्ट प्रिमिटिव सेल्स। तो इस तरीके से पहला प्रिमिटिव सेल जो है वो परफॉर्म्ड हुआ था अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हेल्डन केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये स्टूडेंट्स वेरियस स्टेप्स थे विच वर एक्सप्लेन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन इन देयर थ्योरी, इन देयर केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उस टाइम इकट्ठे कैसे हुए? आज अगर हम देखें तो क्या लाइफ आज ओरिजिनेट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज आज का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीडाइजिंग है।
21% गैस जो है एटमॉस्फेयर की, दैट इज एयर। अगर आज और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं वो फटाफट डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो उस ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन द एटमॉस्फेयर जो कि उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो उस टाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों इकट्ठे हुए, वाई दे एक्यूमुलेटेड एट दैट टाइम? पहला रीजन, लैक ऑफ लाइफ, बिकॉज उस टाइम लाइफ दैट वाज एब्सेंट, ठीक है। अगर लाइफ उस टाइम प्रेजेंट होती तो उसने ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंज्यूम कर लिया होता। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि उस टाइम जो एटमॉस्फेयर था दैट वाज रिड्यूसिंग, अगर ऑक्सीडाइजिंग होता तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीडाइज हो चुके होते। सो दिस वर द पॉइंट्स about the accumulation of organic molecules, ki why organic molecules they accumulated in the primitive atmosphere. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जिसने ओपेरिन और हेल्डेन थ्योरी को सपोर्ट किया। तो होल कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरिन्स थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ दैट वाज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। द आइडिया ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, इसको इंस्पायर्ड किया दो साइंटिस्ट को, मिलर एंड यूरे। स्टूडेंट और टीचर की जोड़ी थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जिन्होंने साइंटिफिकली टेस्ट किया केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट। मिलर्स एंड यूरे एक्सपेरिमेंट जिसे जाना जाता है, 1953 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और मिलर ही यूज्ड एन एपरेटस कॉल्ड स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस, एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से ऑर्गेनिक, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड हुए फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इन्होंने क्या किया, इस तरीके से एक स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस जो है वो सेट किया, जिसमें उन्होंने ये इस तरीके से एक स्पार्क चैम्बर लिया, और इस स्पार्क चैम्बर में इन्होंने 3 जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिए, मीथेन, एमोनिया एंड हाइड्रोजन, इन दी रेशियो 2:2:1, ठीक है। ये अपने इस स्पार्क चैम्बर में इन तीनों गैसेस को लिया इन द रेशियो 2:2:1। वाटर को हीट करके इन्होंने वाटर वेपर भी फॉर्म्ड किया, बिकॉज उस टाइम अर्थ का टेम्परेचर इतना हाई था एंड द वाटर वॉज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बिकॉज अर्थ का टेम्परेचर जो था दैट वाज 4000 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए, और इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उन्होंने 75,000 वोल्ट्स जो है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है वो इस स्पार्क चैम्बर के अंदर क्रिएट किया, ताकि ये गैसेस जो हैं वो आपस में रिएक्ट कर सकें। और ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, दिस वाज केप्ट फॉर 18 डेज, ठीक है। 18 दिन लगातार ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया, और 18 दिन के बाद देखा गया कि यहाँ पे ये जो कंडेंसर में जितने भी ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब कंबाइंड किए, तो इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड किए, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कलेक्ट हो गए इन दी वाटर। तो जब इस वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस की गई, तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर organic compounds, simple inorganic compounds, they were present. For example, aspartic acid, alanine, glycine, they were formed. तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम पुराना जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर है उसको सिमुलेट करें, उसको कॉपी करने की कोशिश करें, उसे क्रिएट करें आज, तो आज भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म्ड किया जा सकता है फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, ठीक है। तो मिलर्स और यूरे एक्सपेरिमेंट जो है वो केमिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ विच वॉज गिवन बाय ओपेरिन और हेल्डेन, इसको एक्सपेरिमेंटली जो है प्रूव करता है। सो मिलर इंट्रोड्यूस इनटू द apparatus a mixture of gases, ammonia, methane and hydrogen in the ratio 1:2:2, which were supposed to be present in the primitive environment, and he partially filled the flask with water and heated it, and this mixture was kept exposed to a continuous electric discharge for several days, for nearly 18 days, ताकि वो गैसेस आपस में इंटरैक्ट करें, और वो गैसेस आपस में इंटरैक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। और उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया
क्या ऑब्जर्व किया? दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड हुए लाइक अमाइनो एसिड्स, एसिटिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, राइबोस, एडेनिन, यूरिया, इस तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने from that simple inorganic molecules. So what was the conclusion of Miller and Urey? So thus Miller's experiment tried to create the condition of primitive atmosphere in the lab. The experiment successfully showed that organic compounds could be produced in the condition prevailing in the prebiotic earth. हाँ, organic compounds को बनाया जा सकता है in the primitive earth. Thus, it supported the possibility of chemical evolution of life. Students, Miller और यूरे ने जिस तरीके से simple organic molecules की formation करवाई from the inorganic molecules, इस तरीके से एक और important experiment आता है which was performed by Fox, Sidney Fox. Fox ने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी फॉर्म्ड किया फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑपेरन और हेल्डेन थ्योरी में मैंशनड है. सो इस तरीके से कई साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑपेरन और हेल्डेन की जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है उसको सपोर्ट किया. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स जो फर्स्ट लिविंग सेल है दैट वाज ओरिजिनेटेड एज इट वाज एक्सप्लेन बाय ओपेरन और हेल्डेन. धीरे धीरे से स्टूडेंट्स क्लोरोफिल जो है वो डेवलप हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई. तो जब फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई तो ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ इनटू द एटमॉस्फेयर, और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर जो है वो रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हुआ. इस ऑक्सीजन ने अर्थ के चारों तरफ ओजोन की फॉर्मेशन करवाई. सो एटमॉस्फेयर स्लोली चेंज्ड फ्रॉम रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइजिंग. इवोल्यूशन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ फॉलोड बाय रेस्पिरेशन. तो जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आया तो पहले जितने ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड हुए थे दे वर एनएरोब्स, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस ले रहे थे. जैसे ऑक्सीजन रिलीज हुआ इनटू द एटमॉस्फेयर तो एरोब्स की क्या हुई? फॉर्मेशन हुई. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट स्टार्टेड. सो इस तरीके से फर्स्ट जो ऑर्गेनिजम्स थे दे वर एनएरोब्स, दे चेंज्ड इनटू एरोब्स. कीमोट्रॉप्स थे, ठीक है, और वो धीरे धीरे हेटेरोट्रॉप्स में जो हैं वो चेंज्ड हुए. हेटेरोट्रॉप्स चेंज्ड हो गए इनटू कीमो ऑटोट्रॉफ्स. लाइक बैक्टीरियाज कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, वो खाना बना सकते हैं बट बाय द एनर्जी विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन. बट इससे पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफ्स थे, वो खाना खुद नहीं बना सकते थे, तो वो ऑर्गेनिक मैटर पे फीडिंग कर रहे थे. तो जब ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म हो गया सारा का सारा तो फिर कीमो ऑटोट्रॉफ्स बन गए. सो तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल जो ओरिजिनेट हुई थी दैट वाज प्रोकैरियोटिक सेल. और हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल में प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. और फिर धीरे धीरे जो है यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो फॉर्म्ड हुई फ्रॉम दी प्रोकैरियोटिक सेल्स. सो इस तरीके से स्टूडेंट्स द लाइफ इट केम इनटू ओरिजिन बाय दी theory which was explained by Oparin and Helton. So students, this was all about the origin of life which was explained by Oparin and Helton. So students, thank you.